celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things in our lives. Hallelujah, Jesus. He is alive. He is alive. He is alive. Hallelujah. That grave is empty. That tomb is empty. Jesus rose up on the third day. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से महान परमेश्वर जो हमारे साथ है और वो जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह. He is alive. Thank you, Jesus. Father, I just commit each and every one of us into your hands, oh God Almighty. And those that are on their way, Lord, that you be with them, Lord, bring them safely, oh God Almighty. Those that are joining us online, Father, I just commit them all into your hands right now. I just commit this service into your hands right now. In Jesus' name, may your Holy Spirit continue to minister to us, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name I pray. Amen, amen. Just want to welcome you all in Jesus' name. आज कुछ नए लोग हैं, हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. And I pray that the presence of the Lord will touch your heart as you open your hearts unto the Lord to worship Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Jesus is alive. Hallelujah. We thank you, Lord God Almighty. Thank you, Jesus.
मसीह जिंदा हुआ, मौत को हराकर जिंदा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद दे प्रभु को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
कुछ एक एक गीत गाओ, ताली बजाकर गाओ, खुशियां मनाओ। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जी उठा है, उस खबर में अब नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आमेन, हालेलुया। तेरा क्या लगेगा है मोल। हालेलुया। कुछ नहीं लगेगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा, कुछ हम लोग की खर्चा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए, उसके धन्यवाद देते हुए, उसकी जय जयकार करे, उसकी आराधना करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु को। थैंक यू जीसस फॉर लविंग अस सो मच। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। Hallelujah. There are no words to describe how much you loved us, what you did for us. You sacrificed yourself for us, O God Almighty. Thank you, Jesus. हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। Sword
से भरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा, मेरे पाप सब क्षमा किया है। उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ था, अंत में उसने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। क्या खत्म हुआ? He paid the price for us. वो दाम चुका दिया, हमें पाप से छुड़ा लिया, शैतान के चंगुल से हमें छुड़ा लिया। फिर वो मरा और जो प्रभु में मरे थे उनको जाकर छुड़ाया, उनको नहीं भूला। वो हर एक को जानता है। He knows every person. Hallelujah. He knows you. He knows what you are going through. He knows your needs, your desires of your heart. He knows everything. There is nothing hidden from Him. Hallelujah. All you have to do is come to Him. उसके पास आए और वो जरूर से तुम्हें मदद करेगा। Friends, families may not be able to help you, but Jesus will help you out. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor, God Almighty. Thank you, Jesus. There is none like Him. There is none like Him. तुमसा कोई नहीं, तुमसा
none like you, Jesus. There is none like you, God Almighty. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. I pray for each and every person that is here, O God Almighty. Pray that you touch them, O God Almighty, from the crown of their heads to the soles of their feet, O God Almighty. In Jesus' name, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. I proclaim healing in Jesus' name, deliverance in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. I also pray for those that are online, O God Almighty, that you touch them, O God Almighty. Those that need healing, Lord, touch them and heal them, O God Almighty. Hallelujah. I proclaim healing, O God. I proclaim deliverance, O God Almighty, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Every sickness and every disease to be gone in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord, for hearing us, O God Almighty. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज हर एक को फिर से हम स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे जैसे सभा में हम हमारे साथ जुड़े हैं. And I know the presence of the Lord is here and He's going to take care of you and whatever situation you are in, He is going to take care of it. Amen? Hallelujah. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के वचन भाई ज़िक्र लेके आता है. So let's welcome him. भाई ज़िक्र. प्रेज़ द लॉर्ड. आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज जैसे हम लोग रेज़रेक्शन संडे सेलिब्रेट करता है तो जो रेज़रेक्शन संडे है इट सिग्निफाइज विक्ट्री. हम लोग अभी जैसे ईस्टर से गुड फ्राइडे से गुजरा और जब हम लोग गुड फ्राइडे के बारे में सुना तो we heard on Friday कि कैसे Jesus Christ he died for our sins, our the painful death that he went through, the stripes that he took for us, and the blood he shed for us. तो ये जो Jesus का जो crucifixion रहा और उसके जो resurrection है, even though ये दोनों connected है, अलग अलग चीज सिग्निफाई करे हम लोग के लाइफ में. जैसे हम लोग अगर देखता है उसके जो कोड़े खाइसरा the 39 stripes that he took, what does that signify? It signifies कि उसके जो stripes ली से उसके द्वारा हम लोग के चंगाई मिले. It brings healing in our life. और जो लहू भाई हमारे तुम्हारे लिए what does that signify? पहले के ज़माना में जैसे हम लोग जानता रहा कि जो एनिमल सेक्रीफाइस रहता है जब वो उसके खून से जो पाप रहता वो खाली कवर करता रहा ताकि जीसस लोग के ताके सके. लेकिन with the blood of Christ we have been set free. हम लोग के जो पाप है उससे छुटकारा मिला. अब हम लोग बंधुआई में नहीं है. हम लोग के जो परमेश्वर के है हम लोग डायरेक्टली सकता परमेश्वर से जाए कुछ मांगे सके हम लोग उसके देखे सकता बिकॉज वो अपना लहू से हम लोग के चंगाई दी से. नाउ दिस इज ऑल रिलेटेड टू गुड फ्राइडे. अब अगर हम लोग उसके रेजरेक्शन के बारे में देखता है व्हाट डज दैट सिग्निफाई? दैट सिग्निफाइज विक्ट्री. हम लोग के एक विजय के बारे में सिग्निफिकेंस दे हुए है. हम बैठ के इसके बारे में थोड़ा कल सोचता रहा कि
अगर कुछ सीन अगर थोड़ा डिफरेंट रहता, जीसस आता हमारे तुम्हारे लिए गोज थ्रू 39 स्ट्राइप्स और फिर अपने आप के क्रूसीफाई करता ताकि हम लोग के छुटकारा मिले सके। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग रेज्ड, वो अपन अगर जैसे हम लोग यहाँ पर जब मरेगा, we will be lifted up and we'll have a glorified body. What if Jesus did not rise up, but उसके spirit जो रहता heaven में चल रहता and he had a new glorified body there. तो वो still heaven जाता, but वो कैसे different रहता? और उसका जो एक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो ये रहता कि परमेश्वर जो है वो जो मौत है उससे विजय नहीं हासिल करता। सो दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज रेज्ड अप ऑन द थर्ड डे। जब वो जी उठा तो वो हमें एक सिग्निफिकेंस देता है कि जो परमेश्वर है वो एक विजय का परमेश्वर है, और जो उसका जो विजय है वो मौत से भी आगे है। अगर हम लोग देखता है कि शायद हम लोग यहाँ जितना जन बैठा है, हम लोग के पास वो ताकत नहीं है कि कोई के मृत्यु से हम लोग सकता है जी उठाए। अगर शायद हम लोग डॉक्टर्स लोगों के बारे में भी देखता है, when people are really sick they go to hospital and they get medication for it, but लेकिन जब कोई मर जाता है, CPR भी उतने देरी काम करता है when there is still life। लेकिन जब कोई मर जाता है, डॉक्टर लोग भी कुछ नहीं कर सकता उसके बाद, चाहे कितना पढ़ा लिखा है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मौत है उसके जो विजय है वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। जैसे हम लोग लाजरस के बारे में देखता है, तो लाजरस के मरे कुछ दिन हो गए थे, तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरी उसके फेस में दिमाग में आया कि परमेश्वर तू पहुँचा तो, लेकिन काफ़ी देर हो गया, कुछ समय हो गया है। अब तो लाजरस मरे 4 दिन हो गए, अब उसके जो बॉडी है वो शायद सड़े के शुरू हो गया। लेकिन जब जीसस आया, देन शी टर्न्ड अराउंड एंड शी डिड शो अ लिटिल बिट ऑफ फेथ। और हम लोग फिर देखता है कि कैसे जीसस लाजरस को जीवित किया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो मृत्यु से भी विजय है। खाली मृत्यु से नहीं, उसके पास सब सिचुएशन, सब सर्कमस्टांसेस से भी उसके पास विजय मिलता है। सो जैसे हम लोग रेजरेक्शन संडे सेलिब्रेट करता है आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप के रिमाइंड करें कि हम लोग एक ऐसा परमेश्वर की सेवा करता है जो विजय का परमेश्वर है। हम लोग के कोई भी सिचुएशन, दुख मुसीबत है, वो हमें निकाल सकता है। और दूसरा चीज़, हम लोग ये अपने आप के रिमाइंड करें कि जब हमारे पास दुख मुसीबत आता है, हम लोग परमेश्वर के पास सबसे पहले दौड़े, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है। हम लोग कहीं भी रहता है, हम लोग परमेश्वर के पास डायरेक्टली जा सकता है, क्योंकि ये जो ईस्टर वीकेंड का ये जो सिग्निफिकेंस है वही हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए उस समय किया था, उन्होंने हमें जो हमारा जो हमें साफ किया है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर हम लोग मूसा के समय में, मोसेस के टाइम में देखता है, तो इट वाज अ लिटिल डिफरेंट। When people had to go to God, they couldn't go directly. वो लोग जो अपना बलिदान रहता रहा वो भी लेकर परमेश्वर के पास डायरेक्टली नहीं सकत रह जाए, because their situation was different. They weren't cleansed. But we are different. We are cleansed by the blood of God, and we can go to God directly. आज हमारे पास जब दुख मुसीबत आता है, हम लोग शायद पादरी के तलाश करता है या कोई के तलाश करता है, which is good, because prayer of a righteous man availeth much. That's what the Bible says. लेकिन हम लोग खुद भी आज परमेश्वर के पास जा सकता अपन दुख मुसीबत लेके। हम लोग के जैसे कोई और के बात सुनता है, वैसे हमारा बात परमेश्वर सुनता है, वैसे तुम्हारा बात सुनता है। और हम लोग के ये खुश नसीब है कि जब हम लोग परमेश्वर के पास जाता है, we don't have to use fancy words. हम लोग खाली अपन जो दुख मुसीबत है, हम लोग सिंपल वर्ड्स में परमेश्वर के पास लेके जाएगा,
वो भी सुनेगा. We don't have to do it in a certain way. खाली हमारा जो दिल है वो साफ रहना बहुत ज़रूरी है. हमारा जो इंटेंशंस है वो साफ रहना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम अपने जैसे हृदय को साफ करता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है. परमेश्वर जो अपना तरफ से वो रिश्ता तैयार कर दिया है. आज हम लोग जो जो देखेगा यहाँ पर स्टोरी मिलता है रेजरेक्शन संडे के, ये कहाँ से शुरुआत भैया, ये हमें मिलता है बुक ऑफ लुक चैप्टर 24. और लुक चैप्टर 24 वर्स 1 में यहाँ पर बताता है, Now upon the first day of the week, which is Sunday, very early in the morning, they came unto they came close to the graveyard, bringing spices which they had prepared, and certain others with them. तो यहाँ पर जो हम लोग देखता है एक स्टोरी, यहाँ पर जो मेरी है, सच्चा घटना है. मेरी आता है, वो स्पाइसेस लेके आता है और भी लोग के साथ आता है वहाँ पर. अगर हम लोग स्पाइसेस के बारे में देखता है तो हम लोग उस समय भी लोग स्पाइसेस वाइज मैन लेकर आया था जिस समय जीसस का डेथ हुआ था. लेकिन यहाँ पर जो है वो स्पाइसेस उस समय जब कोई मर जाता था उनको ग्रेवयार्ड में रखता था तो उसको आकर लोग स्पाइसेस लगाता रहा ताकि 40 to 70 डेज के लिए वो लोग स्पाइसेस लगा कर रखता था ताकि वो जब बॉडी है वो गंधाए नहीं और वो बॉडी को तैयार करता रहा. तो ये लोग जब मेरी लोन यहाँ पर आया तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि मेरी लोन आया यहाँ पर सुबह को पहला चीज, early in the morning they came, very important, early in the morning they came, right? वो लोग दिन के नहीं शुरू वेट किया. जैसे अभी हम लोग हैं स्टेफनी लीव पे है, हम घर से काम करता है तो we wait until the kids wake up and then we wake up. We don't wake up early in the morning, not the first thing. लेकिन यहाँ पर हम लोग जब मेरी लोन के देखता है, it says that they came early in the morning, first thing in the morning. And why was this important? Because अगर हम लोग थोड़ा आगे जाकर स्टोरी देखता है तो जो टाइम गार्ड्स लोन जो हुआ पर रहा वो लोग रियलाइज करे कि जीसस मृत्यु से जी उठा है. Because Jesus had prophesied that before, Jesus had told them before, they knew that Jesus was resurrected. But वो लोग जाके एक कहानी बनाइस कि बोले अगर कोई पूछी तो बोले तुम लोग बताना कि वो लोग ऐसा जीसस के बॉडी चोरी करके ले चला गए. If Mary had not gone there early in the morning, और उससे पहले अगर शायद जो कैप्टन लोन जो गार्ड्स लोन रहता वहाँ पर अगर शायद वो लोग पहले पहुँच जाता और लोग टूम को जो एम्प्टी देखता तो वो लोग यही कहानी बना देता. और फिर जब ये कहानी बनाता शायद वो लोग जाकर पहले डिसाइपल्स लोन के पकड़ भी लेकाता, शायद वो लोग मेरी लोन के भी पकड़ लेकाता. तो जो यहाँ पर कहानी है वो शायद कुछ और रहता. तो दैट इज व्हाई मेरी और द अदर लेडीज, द वर्क दैट दे हैड, the job that they had, it was very important that they did it faithfully. आज हमारे तुम्हारे भी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग कभी कभी सोचता है कि अगर ये टाइम हम मिस कर देगा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, इट्स ओके इफ आई मिस इट वंस ट्वाइस, बट वी डोंट नो व्हाट वी आर मिसिंग. हम लोग नहीं जानता कि हम लोग जब परमेश्वर के पास नहीं जाता, हम लोग उसके समय जो है वो स्किप कर देता. वी डोंट नो व्हाट वी आर मिसिंग. यहाँ पर अगर शायद मेरी लोग देरी में पहुँचता, वो लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट जो रहा वहाँ पर मिस कर देता. शायद वहाँ पर कोई और पहुँचता, वो लोग कहानी शायद कुछ और हो जाता वहाँ पर. लेकिन it's very important, that is one of the lessons that we need to learn
सीख है हमें मिलता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अपने लाइफ को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमें जो कमिटमेंट है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक गैप मिस करता, वी डोंट नो व्हाट वी आर मिसिंग, वी डोंट नो कि कैसे चीज़ डिफरेंट हो सकता रहा। और अगर शायद मेरी लोग नहीं जाता, जो कहानी रहता शायद वही सच रहता, उसके फिर शायद कोई बदल नहीं सकता। तो फेसिज ये बताना चाहता है, और फिर यहाँ वर्स 2 में भी पड़ेगा, एंड दे फाउंड द स्टोन रोल्ड अवे फ्रॉम द ग्रेव एंड दे एक्सटेंडेड इन एंड फाउंड नॉट बॉडी ऑफ द लॉर्ड। वो लोग गया हुआ पर भीतर नहीं देख पाया परमेश्वर के जो बॉडी है उसको। तो ये लोग घबरा गए। वेस 4 एक इम्पोर्टेंट वेस हम इसमें शेयर करना चाहता है। तो वेस 4 में यहाँ पर बताता है, लुक चैप्टर 24 वेस 4 में, कि एंड दे केम while they were perplexed about this, they were amazed, they were surprised. Suddenly 2 men stood by them in dazzling clothes. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, they were amazed, वो लोग सरप्राइज्ड रहा। लेकिन जो मेरी है और जो वहाँ पर उसके साथी लोग जो गए थे, they were already told by Jesus कि हम मौत से गुजरेगा, and then third day I will rise up. तो परमेश्वर ने इन्हें ऑलरेडी वो बात बताया था। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर गया और जब फिर से देखा वहाँ पर कि परमेश्वर के बॉडी नहीं है, they were surprised. काहे हम लोग आज certain situation से सरप्राइज हो जाता है? बिकॉज हम लोग के पास इनफ फेथ नहीं रहता है। शायद मेरी लोन भी सोचा रहा कि परमेश्वर बोल इस तरह की जिंदा हुई। He said that he will restore the temple in 3 days, but they weren't sure if he was gonna rise up from the dead. Why? Because normal people don't rise up from the dead, right? हम लोग के अगर कोई मर जाए तो मर जाए, unless God wants them to rise up. तो यहाँ पर वो लोग जब जीसस के मृत्यु हो गई सा, they weren't expecting, even though Jesus told them what to expect, even though वो लोग जो miracles Jesus perform करता रहा वो देखिस रहा, even though Jesus के teachings वो लोग सुनिस रहा, even though they were with God Jesus all the time, but जब ये situation आया, they lacked faith. हम लोग के life में भी certain times we lack faith. There is so many testimonies in our life, but sometimes we label them as coincidence. हम लोग उसको coincidence का नाम दे देता है, because we don't have enough faith. जब हम लोग के पास विश्वास रहता है तो हम लोग ये जानता है कि वो जो हमारे लाइफ में होता है, जो आज हमारे जहाँ पर हमें परमेश्वर उठा कर रखा है, it's a blessing. It's not something we did to deserve it. It's a blessing from God. वो हमें दिया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो ये जो बुक ऑफ लुक है, यहाँ पर काफ़ी आगे और हम लोग पढ़ सकता है, और फिर हम लोग उसके बारे में देखता है कि एंजल लोग से बात करता है और उनसे ये बताता है कि तू जीसस के क्यों मृत्यु में खोजते हो, जो जीवित है उसको मृत्यु में क्यों खोजते हो। आज जो परमेश्वर है, हम लोग उसके किस रीति से आज हम लोग उसके तलाश करता है। आज हम लोग अगर परमेश्वर के तलाश करता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसके जाने कि he is not among the people that loses, he is not among the defeated, he is among the victorious one, जो हमें वो खुद जीता है। और उसके द्वारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वो जीता है तो उसके साथ साथ वो हमें भी जिताया है। तो जो victory, the victory that he gained, we have received the same victory in our life. तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग जाने कि where we stand in relation with God. हम अगर जो उसके
उसके रिजरेक्शन के बारे में देखता है, तो यहाँ पर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके रिजरेक्शन के साथ साथ हमें मिला। ये सिर्फ 5 चीज नहीं है, बट ये 5 इंपॉर्टेंट चीज जो हमें रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है कि उसके मृत्यु के साथ जो हमें मिला है। पहला चीज जो हमें मिलता है बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके 4 ले। तो यहाँ पर बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 1 से 4 में यहाँ पर हम लोग अगर देखेगा, तो पहला चीज जो हम लोग जानता है, काफी दफा हम लोग सुना है इसके बारे में, वी गेट सल्वेशन। हम लोग के जो पाप रहा उससे छुटकारा मिला। वी रिसीव सल्वेशन। हम लोग जो बॉन्डेज में रहा, पाप के बॉन्डेज में रहा, उससे हम लोग के छुटकारा मिला है। अगर हम लोग पाप के बारे में देखें, पाप इस पृथ्वी पे कैसे आया? एक इंसान के द्वारा, राइट? एडम एंड ईव, वी नो अबाउट द स्टोरी व्हेन they ate of the fruit that they were not supposed to eat, and उसके द्वारा they had to leave the paradise. तो एक इंसान के द्वारा हमें मौत मिला, और जीसस जो इंसान बनकर आया, वो इंसान के द्वारा हमें जो पाप से छुटकारा मिला। So sin came to the world through a person, and it we were जो sin है वो दुनिया से, वो हमारे लाइफ में से कैसे साफ हुआ? It's through the Son of God who came as a son of man. तो जैसे हम जीसस के बारे में जानता है, he was the son of God, but he was the son of man at the same time, because हमारे तुम्हारे रकम आया यहाँ पर और अपने आप को बलिदान करा, because he was blameless. वो बिना पाप के था, वो साफ था, और जो उसके सेक्रीफाइस है उससे हमें तुम्हें छुटकारा मिल सका। अगर हम जाके अपने आप के सेक्रीफाइस करेगा तुम लोग के लिए, वो कोई फायदा के नहीं, बिकॉज आई एम नॉट दैट, हम परमेश्वर का रकम साफ नहीं है। सो इट हैड टू बी समबडी हु वाज विदाउट सिन। तो जीसस खुद आया, बिकॉज कोई ऐसा नहीं था जो बिना पाप के था। तो जीसस खुद आया, बिना पाप का था, और वो हमारे तुम्हारे पाप लेकर अपने आप को बलिदान कर दिया। सो उसके पाप के द्वारा जो उसका जो लहू बहाया गया, उससे हमें सल्वेशन मिल गया। दूसरा चीज जो हम लोग के मिलता है स्टिल बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस, यहाँ चैप्टर 15 में वर्स 55 to 57 में, हम यहाँ पढ़ता नहीं बट हम थोड़ा समराइज करते जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा चीज हमें मिलता है, एक विक्ट्री मिलता है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो बता हुए, इट्स अ विक्ट्री ओवर डेथ। तो जो परमेश्वर है वो विजय का परमेश्वर है। तो आज रिजरेक्शन संडे जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वी हैव टू रिमेम्बर दैट वी लिव अ विक्टोरियस लाइफ। आज हमारे लाइफ में कौन सा सिचुएशन है, कौन से सर्कमस्टांसेस है जिससे हम लेकर एकदम थक गए हैं, जिससे हमें छुटकारा ही नहीं मिलता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हमारे लाइफ में, फिर वो होता है, कुछ और हो जाता है, और हम खुशियाँ नहीं बना सकते। एवरी टाइम वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग हैपन्स that takes our celebration away, that prevents us from living a joyous life, that prevents us from being happy, that prevents us from being relaxed. आज वो कौन सा चीज है हम लोग आज वो उठाकर परमेश्वर के दे सकते हैं, क्योंकि वो विजय का परमेश्वर है। और वो ऐसा ये जो रिजरेक्शन है उससे यही हम लोग के दिखाया कि वो विजय का परमेश्वर है। तीसरा चीज जो आज हम लोग यहाँ पर देखता है वो मिलता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। बहुत से लोग ये जो वेस है इसे मेमोराइज कर रखा है, और जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में ये बताता है कि परमेश्वर हमें एक नया जिंदगी दिया है। तो जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 ये तीसरा चीज है, वो हमें एक नया जीवन दिया है, और
बहुतायत का जीवन दिया है. It's not just a new life but a life of abundance. यहाँ पर बताता a thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. आज हमें एक लाइफ मिलता है और भरा हुआ लाइफ मिलता है. तो आज हम ये जब परमेश्वर हमें भरा हुआ लाइफ देना चाहता है, आज हम क्यों सेकंड बेस्ट पे सेटल होने के लिए तैयार रहता है. आज हम अपने लाइफ में ये क्लेम करें, बहुतायत के ज़िंदगी अपने लाइफ में क्लेम करें. वी क्लेम अ लाइफ ऑफ अबंडेंस. और दिस इज़ नॉट जस्ट जब हम लोग अबंडेंस के बारे में सोचता है, इट्स वी जस्ट थिंक अबाउट फिजिकल अबंडेंस, बट यहाँ पर जो परमेश्वर अबंडेंस के बारे में बात करता है, इट्स बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल. हम लोग के लाइफ में when we are connected with God, जब हम लोग परमेश्वर के सही तरह से उससे रिलेशनशिप बना लेता है, then we realize कि there is much more than the physical aspect of life. जो physically हमारे पास रहता है, उससे कई ज़्यादा चीज़ हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस देता है, which is having a good spiritual life. Because हमारे पास जितना physical चीज़ है, it's all temporary. शायद हम लोग के पास कुछ सिचुएशन है, it's all temporary. We have a lot of wealth, that is temporary as well. आज शायद हम लोग के पास बीमारी है, that's temporary as well. अगर शायद हम लोग के पास आज नाम है, हम लोग के we have made a good name for ourselves, that's temporary as well. कुछ भी आज ऐसा नहीं है हमारे पास that's permanent. The only thing that's permanent is the relationship that we have with God. Because हम लोग जब यहाँ पर छोड़ के जाएगा, that relationship is the only thing that will matter for us. जैसे हम लोग के जो relationship है, it will decide whether we enter into the kingdom of heaven with God or we are denied that entry. जब हम लोग परमेश्वर के पास जाएगा परमेश्वर हमसे पूछे कि क्या हम लोग उसके लिए किया, कैसा ज़िंदगी हमें बिताया. कभी कभी हम लोग सोचता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए ये करता वो करता है, और परमेश्वर हम लोग का जैसे धर्मशास्त्र में बताता है कि बोले हम घूम के हम लोग क्या बताएगा कि तू दूर हट जा, हम तुम्हें जानता भी नहीं है. आज हम लोग परमेश्वर से रिश्ता बना ले, फिर से वो रिश्ता मजबूत कर ले कि जब हम परमेश्वर के पास जाए तो वो हमें घूम कर वो नहीं बता कि तू हट जा, हम तुम्हें जानता भी नहीं है. We could be Christians for 1 year, we could be Christians for 5 years, we could be Christians from birth. लेकिन अगर हम लोग का जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ नहीं है, जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ नहीं बनाया है, जो रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करा है, तो सब कुछ वेस्ट है. इट्स ऑल इन वेन. बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता तैयार करें, क्योंकि जब जैसे वो हेवन छोड़कर आया एर्थ पे हमारे तुम्हारे लिए, वो अपना साइड से वो रिश्ता तैयार कर दिया. बिकॉज हम लोग पाप में डूबा रहा, और जो पाप में डूबा रहता है, और परमेश्वर जो साफ है, एक मैला चीज़ और एक सफ़ा चीज़, उसमें एक रिश्ता नहीं रह सकता है. लेकिन जब जैसे परमेश्वर हमें साफ किया ताकि हम लोग वो रिश्ता है मजबूत कर सके, ही ओपन दैट डोर फॉर अस. आज हमारे तुम्हारे पास वो डिसीजन है कि हम लोग वो जो रिश्ता है, जो नया जीवन जो परमेश्वर हमें दिया है, हम लोग उसको कैसे लेते हैं, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं. और जैसे हम इसमें बताता रहा, ऑल्सो ब्रिंग्स टू द फोर्थ पॉइंट, उसके जो रेजरेक्शन है उसके द्वारा, उसके सेक्रीफाइस और रेजरेक्शन के द्वारा हमें पैराडाइज में एक एंट्री मिलता है, जो हमें मिलता है बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 13 में. यहाँ पर हमें बताता है कि वी गेट entry to heaven. He has given us that pass, but it is again up to us if we want to take it. He has made us righteous. ये righteousness जो हमें दिया गया है, we haven't earned it. हम लोग कोई भी तरह से उसके earn नहीं सकता न करे, because we were already born in sin, and then we were living in sin, and then we are still living in sin.
हम लोग अभी भी हम लोग चूक कर देता है, लेकिन जो परमेश्वर के सेक्रीफाइस के द्वारा, उसके खून के द्वारा हमें वो साफ करता है और हमें मैल, हमारे जो गंदगी है उसके धोकर साफ करता है और हमें एक नया इंसान को बनाता है। और जो लास्ट चीज हमें इसमें से मिलता है, जो हम है, जैसे परमेश्वर जी उठा, हम भी परमेश्वर में जी उठे। और जब हम परमेश्वर में जी उठे तब हम पाप के लिए मर चुके हैं, बिकॉज हम लोग पाप में भी और परमेश्वर के साथ भी दोनों जगह नहीं सकता रहे। वी हैव टू चूज विच साइड वी वांट टू लिव ऑन। वी कैन ओनली लिव ऑन वन साइड। जैसे हम लोग है यहाँ पर, हम लोग डिसीजन बनाया कोई जन यहाँ पर कि हम लोग फिजी छोड़ के आएगा कनाडा, बिकॉज हम लोग यहाँ रहे बनता। कोई जन यहाँ से जाओ मांगे लौट के फिजी, वो लोग मांगे फिजी में रहे। सो एवरीबॉडी हैज अ डिसीजन वेयर दे वांट टू लिव। वो लोग आधा शरीर फिजी में, आधा शरीर कनाडा में नहीं सके रहे। दे हैव टू चूज वन प्लेस और दी आधा विजिट करे जा सके। लेकिन यहाँ पर जो सीन है, अगर हम लोग क्राइस्ट में रहता है, हम लोग सिन के विजिट भी नहीं करे जाए। तो हम लोग आज हम लोग ये डिसीजन बना ले कि हम लोग किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। आज हम लोग सिन में जीना चाहता है कि क्राइस्ट में जीना चाहता है। जब परमेश्वर मृत्यु से जी उठा है, वो उसके साथ हमें भी जिलाया है, ताकि वी कैन बी अलाइव इन क्राइस्ट एंड वी कैन बी डेड इन सिन। ये हमें मिलता है बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 11 में। तो आज जैसे हम लोग रेजरेक्शन संडे सेलिब्रेट करता है, एक चीज हम लोग अपने आप के रियलाइज करें कि आज एक डिसीजन बनाए अपने लाइफ में। सबके इनकरेज करता है कि ये डिसीजन आज हम लोग अपने लाइफ में बनाए कि आज हम लोग अपने आप से वादा करें कि फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी अलाइव इन क्राइस्ट एंड वी विल बी डेड इन सिन। जब हम लोग परमेश्वर में जी उठता है तो हम लोग परमेश्वर के लिए एक कमिटमेंट बना लेता है। एवरीथिंग एल्स बिकम्स सेकेंडरी। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के वही समय देता है, वट एवर इज लेफ्ट ओवर्स, जो बचा कुचा रहे हैं वही हम लोग उठाकर परमेश्वर के देना चाहता है। हम लोग परमेश्वर के लिए एक स्पेशल टाइम नहीं बनता निकाले। अगर हम लोग के कुछ नहीं करे तो उस समय हम लोग परमेश्वर के दे देता है। बट व्हेन वी आर इंडीड अलाइव इन क्राइस्ट, हम लोग उसके एक प्रायोरिटी देगा। वी विल सेक्रीफाइस आवर टाइम फॉर हिम, वी विल लिव विद हिम, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। जो चाहता है, जो करना चाहता है हमारे लाइफ में, हम लोग अपने लाइफ के अवेल करेगा कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे सके। तब ही हम लोग सही तरह से परमेश्वर में अलाइव रह सकता है। तो आज हम लोग जैसे इस रिजरेक्शन संडे सेलिब्रेट करता है, आज हम लोग अपने आप के डिसाइड करें कि क्या आज हम क्राइस्ट में अलाइव है, रियली में अलाइव है कि नहीं, कि क्या आज हम पाप में अलाइव है। अगर आज हम लोग के शायद हम लोग आज जैसे हम लोग सवालात पूछता है, अगर शायद हम लोग के आंसर है कि हम थोड़ा थोड़ा पाप में भी अलाइव है, थोड़ा थोड़ा क्राइस्ट में भी अलाइव है, तो आज हम आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता है कि हम लोग खाली पाप में अलाइव है वो रकम से। अगर हम लोग आज क्राइस्ट में अलाइव है तो हम लोग जो सिन है उसमें हम लोग पूरी रीति से मर चुके हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद सिन। जैसे हम लोग परमेश्वर से रिश्ता बनाता है, हम लोग अपने आप से सिन से दूर चले जाएगा, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ सही तरह से एक रिश्ता बना सके। तो आज ये वचन से सबको ये इनकरेज करना चाहता है कि लेट अस बी अलाइव इन क्राइस्ट। जो विजय हमें परमेश्वर दिया है, इट्स नॉट अ इजी थिंग दैट ही डिड फॉर अस। जो विजय वो हासिल किया था, इट वाजंट जस्ट अ सिंपल थिंग that he did. He came, he went through a painful process, then crucified himself, and then he rose up on the third day. He restored his body, but he also restored us as well.
जैसे हम लोग का लाइफ है, इट्स अ बॉडी, इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड. We make let us make a new commitment, a new covenant to God, कि हम लोग अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए बदल देगा और उसके ही तरह आज से जीना शुरू करेगा, ताकि हम लोग भी एक विजय के जिंदगी जिए सकता है. और जब भी दुख मुसीबत आवे है, हम लोग उसके भगा सकता है, उसके डांट सकता दे, क्योंकि हम लोग जानता है परमेश्वर हमें एक विक्ट्री देता है और वो चाहता है कि वही विक्ट्री हम लोग अपन लाइफ में इस्तेमाल करें. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए. और इसमें से हम ढेर चीज सीख सकते हैं. वन ऑफ द थिंग्स जो हम अब देखते हैं, ये स्त्री लोग क्यों सुबह को उस कब्र के पास गए. वो लोग जानते थे कि उस कब्र के आगे एक दरवाज़ा लगा है और उसमें रोमन गवर्नमेंट का सील है और कोई भी उस सील को तोड़ नहीं सकता है. So it's on the third day ये लोग वहाँ पर गए. जैसे हम देखते हैं उन लोग की कस्टम में रहा है, जो बॉडी को जो एम्बाम करते हैं, जो स्पाइसेस कहते हैं उन लोग को, और जो केमिकल्स और व्हाटएवर उन लोग जो यूज़ करते हैं. These ladies were ready to go and sort of प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में लगाने के, but they knew कि वो उस कब्र में है जहाँ कोई अंदर जा नहीं सकता है. But they still prepared and went. Did they know कि प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा? Maybe not. Because स्क्रिप्चर में बताता है उन लोग के दिमाग उतना नहीं खुला रहा कि उन लोग समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह जैसे बताया रहा कि वो जी उठेगा, वैसे जी उठा. So यहाँ पर जो when you looking at the जो मेल साइड पीपल लोग, जो डिसाइपल्स लोग रहा है, they didn't go there. Why? Because they were still thinking कि प्रभु यीशु मसीह मर चुका है और वो कब्र में बंद है, and we can't even access that, right? और प्रभु यीशु मसीह के जब उन्होंने बॉडी के उस कब्र में रखा था, सिर्फ कपड़ा में रैप करके रख दिया रहा, because it was late in on the eve of Sabbath. Sabbath के Jewish custom में है, वो लोग काम नहीं करते हैं. They cannot do anything. This was the law. So शाम के समय उसके बॉडी को उठाकर कपड़ा में सिर्फ उसे चादर में रैप करके वहाँ रख दिया था. So that was one of the reasons ये स्त्री लोग वो सब प्रिपेयर करके वो लोग गए थे. But little did they know कि परमेश्वर वो दरवाजा को तोड़ देगा. No government, nothing could stop the resurrection of Jesus. प्रभु यीशु मसीह जी उठा था. So, in order to understand this part of it, हम लोग के पीछे जाके पड़ी लाजरस के समय में. लाजरस के बॉडी को उन्होंने पूरा एम्बाम करके उसके जिसे कहते हैं ममीफाइड, उसके बॉडी को बैंडेज के तरह कपड़े में रैप करके उसके कब्र में रख दिया था. And they said उसके बॉडी तो अब नो लग के जब प्रभु यीशु मसीह बताया कि उसकी कब्र को खोलो, तो वो लोग बोला wait a minute, उसके बॉडी तो सब it's gonna be stinking by now. प्रभु यीशु मसीह बताया नहीं, उस दरवाजा को खोलो. See, Jesus could have done it himself, right? बोलता कि हट जाए, वो हट जाता. But वो चाहता था कि इंसान के, because इंसान वो रखा है, इंसान उसको हटाएगा. फिर प्रभु यीशु मसीह लाजरस को बोला, लाजरस निकल के बाहर आओ. And Lazarus came out probably just like that, no, like bandage, उसका पूरा सर से लेकर पाँव तक, and he's walking there. शायद उसको दिखाई भी नहीं देता. And थोड़ी देर के लिए सोचिए कितने लोग वहाँ विटनेस किया है, कितने लोग देखकर भाग पड़े होंगे. What would you have done if you saw a dead man walking, right? And in that situation में, तो प्रभु यीशु मसीह के बॉडी को उस तरह से उन्होंने नहीं किया था, because there was no time to do that.
So the ladies, they wanted to do it as on the third day basically, because that was the time they could do something about it. But जब वो गए वहां पर, उसका बॉडी तो वहां रहा नहीं, वो तो जी उठा था. जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, जो वाइज मैन लोग आए थे, they brought different spices with them. One of them was for embalming the body basically. Little did they know कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, वो हमारे तुम्हारे लिए मरेगा और वो जी उठेगा. आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस वचन के लिए. हम सीख सकते हैं इसमें से कि हमारा प्रभु जीवित है. He doesn't need no embalming, he doesn't need no spices, nothing. He came, he paid the price on that cross when he said it's finished, and he has set us free. Now we can enter into the presence of God. जो पर्दा था उस टेम्पल में, जो होली ऑफ होलीज को डिवाइड करता था, जो होली ऑफ होलीज था, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति था. Right? The presence of God was in that place, and nobody could go in there except for the high priest once a year for the rituals जो परमेश्वर ने बताया था. And in order to do that, the high priest had to go through so many rituals to purify himself. If there was any trace of sin in his life, he would be stricken dead by the glory of God in that Holy of Holies. Now, not that high priest, but we can enter into that in the presence of God. How? Through Jesus Christ. जॉन की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I am the way, the truth and the life. No man comes out of the Father without me. बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता. So we have to go to the Father through Jesus, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. And how is that? Through the story of that cross. जो कुछ क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसको हम रिसीव करें और माफी मांगे. There were two thieves hanging on that cross. Remember? One of them turned around and said, if you are the Son of God, save yourself and save us. The other one turned around and उस चोर के बोला, paraphrasing it, बोलता है कि shut up भाई, ये व्यक्ति तो कुछ भी गलती नहीं किया है जिंदगी में. He has done great things in life, and we are the ones that have done wrong throughout our life. हम लोग के ये सजा मिला है, it is fair. But then he turned around to Jesus and he said, remember me in your paradise. ये words में बहुत हम लोग सीख सकते हैं. उसमें वह यही कहता है कि Lord forgive me for what I have done. When Jesus said, surely you will be in paradise with me, तो हमारे साथ रहेगा, which meant प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया. Even though he hadn't finished the work, और उसको माफ कर दिया था. But the whole thing, जो पूरा story हुआ, when he said it is finished, and he bowed his head and died. He commended his spirit into the hands of God, and he said, it is finished. लेकिन वहां पर सब खत्म नहीं हुआ. प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उसके साथ हम भी जी उठे. That person that was there on that cross that died, he was risen with Christ as well. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते प्रभु. आज हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए. Father, we just thank you for these words of encouragement, O God Almighty, reminding us, Lord, for what you have done for us, O God Almighty. I pray for your blessing upon this word, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सभा खत्म कर देंगे.
खुशी सबके लिए जी उठाए मसीह, आओ चले उससे मिले, जी उठाए मसीह. Those ladies, they came to that tomb where Jesus was buried, and they saw the stone rolled away and the tomb empty. Hallelujah. वो जी उठा. वो एंजल्स ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और आज भी वो जीवित है. हालेलुया. हमारे स्वर्ग के पिता के साथ वो बैठा है. धन्यवाद हो प्रभु. Thank you, Father. Thank you, God Almighty, for your love and your mercy upon our lives, O God. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 God bless you all, and we'll see you hopefully on Wednesday. Till then, the Lord be with you, and a very blessed Easter to everyone. God bless you all.